एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜਿੰਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜਿੰਦਲ, संतोष जिंदल, रमेश जिंदल, रेनू जिंदल, राजिंदर जिंदल, गीता जिंदल, रितु गोयल, सचिन गोयल, सुरुचि सिंगल, गौरव सिंगल, रितिका मित्तल, अर्जुन मित्तल, सिद्धिका जिंदल, नीलम गुप्ता, हितेश गुप्ता, पूनम सिंघाल, संदीप सिंघाल, संदीप जिंदल, मनु जिंदल, अमन जिंदल, सुमति जिंदल, साहिल जिंदल, अंकिता जिंदल, नेहा जिंदल, स्नेहाल जिंदल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿੱਕਾਮਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਪਰਸੰਨੀ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 13 ਮਈ 1927 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ BA ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 1950 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜਿੰਦਲ, ਰਮੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 51 ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। Thank you.
राम जाप में ऊंची करनी, बाधा देन कहो दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, ऐसो व्रत नेम तप तपना। राम जाप के सर्व समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नाम निधान, दाता राम है सब सुख पान। राम राम चित्तन सुविचार, राम राम जप निश्चय ध्यान। राम राम श्री राम ध्याना, मैं परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम हेयो। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत हो। राम चिंतामणि रघुनाथो, राम नाम मेहमान हो। सकुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम महातारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति दोष, राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पर बल प्रकाशी, राम राम जप दोष विनाशी। चुनरी बोली सुषमा बोले, राम भद्र अमृत रस बोले। उपजी नाम सहज बहु भाव, अज काजा कवितर घोषा। राम राम बल शक्ति जगावे, राम राम धुन जबीरा आवे। राम नाम जप जगे अहम, चेतन भाव जगे सुख सर। प्रिय विद्या टूटे भारी, राम लीला की खिल फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपिया। सकल सिद्धि पर साधना, राम नाम अनुराग। दीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुख पार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जनकारी। जति सति साधु संत सियानी, राम नाम निश देव बखानी। तापस योगी सिद्ध ऋषि पर, जपते राम राम सब सुख कर। भाव भक्ति भरे भजती, भजते राम नाम रमती। भजते भक्त भाव भरपूर, हृदय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम गाढ़ीवान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत गान। इसने सुरती सुर राती, राम राम स्वर साध समाते। देव देव हर देव निभाता, राम राम भजने कर गाता। राम राम सुगुनि जन गाते, सर संगीत से आवे धागे। कीर्तन कथक के मान, सार सरस संसार रमान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। अंत काले सकीना सहारा। अंत काले सकीना सहारा। राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी। सखा स्नेही
मन चंचल चले राम शरण में, 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 मन चंचल चले राम शरण में, मन चंचल चले राम शरण में। राम ही तेरा जीवन साथी, राम ही तेरा जीवन साथी, मित्र हितैषी सब दिन राती, राम ही तेरा जीवन साथी, मित्र हितैषी सब दिन राती, दूर दिन के ये जग वाले, दूर दिन के ये जग वाले, हरियम संग है जन्म मरण में, मन चंचल चले राम शरण में, मन चंचल चले राम शरण में। तूने जग में प्रेम बढ़ाया, तूने जग में प्रेम बढ़ाया, कितना सिर पर भार चढ़ाया, तूने जग में प्रेम बढ़ाया, कितना सिर पर भार चढ़ाया, पल पल मुश्किल हो गिरे पगले, पल पल मुश्किल हो गिरे पगले, भाव सागर फिर पार करने में, मन चंचल चले राम शरण में, मन चंचल चले राम शरण में। ऐसा कौन जगत में आया, ऐसा कौन जगत में आया, जिसने मरण नहीं है पाया, ऐसा कौन जगत में आया, जिसने मरण नहीं है पाया, जो आता है अवश्य ही जाता, जो आता है अवश्य ही जाता, आदि सदाई अंत दिखाता, मन चंचल चले राम शरण में, मन चंचल चले राम शरण में। काल चक्र की
श्री जगदीश राय जी जिंदल अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके उस परमेश्वर श्री राम की चरण शरण में जा विराजे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कौन कितना इस धरती पर जीवित रहा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसका जीवन कैसा था, अनुकरणीय अथवा साधारण जीवन, यह महत्वपूर्ण है। काल तो बहुत बलवान है। श्री रामायण में काल बहुत बलवान है। इसका टले न वार, इसके सम्मुख सब जन गए आज बखार। ये काल इतना बलवान है, कोई राजा है, कोई रंग है, कोई फकीर है, कोई साधु है, इसके सम्मुख आज तक कोई भी विजय हासिल नहीं कर पाया। कोई शूरवीर क्षत्रिय ही क्यों ना हो, काल के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। अवश्यम भावी नियम है, सब में रहे समान। जन्म के साथ मृत्यु, गुरु विशिष्ट कहते हैं श्री रामायण में, यह अनिवार्य नियम है। जब महाराज दशरथ ने अपने इस पंच भौतिक धाम का त्याग किया, श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण तो वनों को जा चुके हैं, चित्रकूट पर पहुंच चुके थे। भरत और शत्रुघ्न कश्मीर में अपने नाम के गए हुए थे। जब वापस आए, माता कैकेयी ने बताया भरत जी को कि तेरे पिता परलोक सिधार गए हैं। तब बहुत विलाप करने लगे शत्रुघ्न और भरत जी। तब गुरु विशिष्ट ने भरत जी को निमित्त बनाकर हम सबको उपदेश दिया, ये बात समझाई, काल बहुत बलवान है। क्यों ये शब्दों का क्यों प्रयोग किया? विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज के पिता हैं महाराज दशरथ, स्वयं भगवान के पिता हैं। भगवान भी उस देववादी देव के विधान में कोई दखल नहीं दे पाए। बिना रोक टोक के जब परम पिता परमात्मा अपना कार्य करता है। गुरु विशिष्ट जी भी नक्षत्रवासी हैं, रघुनाथ जी का गुरु बनने के लिए इस धरती पर आए हैं। भरत जी से कह रहे हैं काल बहुत बलवान है, इसका टले न हुआ, क्योंकि सभी भाई शूरवीर क्षत्रिय हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध सभी जानते हैं, क्योंकि शेषनाग के अवतार है। स्वयं भगवान विष्णु श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हैं। उनके पिता का इस प्रकार से चला जाना, ये विधाता का विधान, ये नियम किसी से भी टाले नहीं करता। अवश्यम भावी नियम है। गुरु विशिष्ट कह रहे हैं अवश्यम भावी नियम है, सब में रहे समान। तत्व बुद्धि से मनन कर उठो कुमार सुजान। उसी प्रकार प्राणियों का जन्म तथा मृत्यु ये विधाता का विधान है, ये विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं कर सकता। परंतु ये अर्जुन, यदि तू ये समझता है कि हम सब इस जन्म से पहले नहीं गए और मरने के बाद भी नहीं होंगे, तो ये सत्य नहीं है। ये अर्जुन, हम सब इस जन्म से पहले भी थे
मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। आत्मा देह से भिन्न वस्तु है, केवल देह का नाश होता है, पंचभूतों से बना हुआ है। जिसका आदि है उसका अंत है, जिसका आरंभ है वह अंत को भी प्राप्त कर ले देगा। परंतु आत्मा अमर सत्ता है। आत्मा का नाश त्रय काल, तीनों कालों में नहीं हो सकता। आग इसे नहीं जला सकती, वायु इसे नहीं सुखा सकता, पानी से नहीं जला सकती और तीखे शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते। तब आत्मा के लिए अधिक क्या होगा? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा, ये अर्जुन, ये जन्म और मृत्यु ये तेरे हाथ में नहीं है। हानि लाभ तेरे हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति हानि के लिए कार्य नहीं करता। अपना व्यापार कोई भी व्यक्ति इसको बढ़ाता और आगे चलाता है, घाटे के लिए नहीं करता, परंतु फिर भी होता है। जय विजय, ये सब परमात्मा ने कहा मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में केवल कर्तव्य कर्म करना ही है। इसके अतिरिक्त किस कर्म का फल कितना होवे यह ईश्वर के अधीन है। तुझे नित्य निरंतर दत्त चित्त होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। इसलिए नित्य नियम से अमृत वेला सतनाव बढ़ियाई विचार प्रातः काल उठ करके उस परमात्मा का असंख्य धन्यवाद कर लीजिएगा, जिसने एक नया सूर्या उसके दर्शन करने के यह अवसर आपने प्रदान कर दिया। परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी है, जो देंगे सब जगत को, सारे जगत को देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। उसका धन्यवाद करना और सेवा परहित परोपकार का जीवन होवे, नाम जाप होवे, शुभ कर्म होवे, इसी से ये जीवन हमारा सफला होता है। ऐसा ही जीवन पूज्य श्री जगदीश राय जी जिंदल व्यतीत करके गए। नाम जाप के साथ जुड़े हुए, सत्संग के साथ जुड़े हुए, नाम दीक्षा राम नाम की ली हुई और अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाने में भरसक प्रयत्न करते रहे। ऐसी देवात्माएं वास्तव में बड़े पुण्यवान संतानों को प्राप्त होती है। निश्चित रूप से उनका चले जाना सारे जिंदल परिवार के लिए, समस्त मित्तल परिवार के लिए, अरिस्टोक्रेट से सभी परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, कपूर परिवार बैठा हुआ है। एक मार्गदर्शक के रूप में पूज्य श्री जगदीश राय जी जिंदल जी ने जो कार्य किया, जो मार्ग दिखाया, गुरु महाराज ने वर्णन किया है। चरण चिन्ह पिता के निहार, चलना अनपढ़ चतुर विचार। जैसे पिता ने अपना जीवन जिया, वैसा ही पुत्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को वैसा ही सुकृत जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारा उज्जवल मुख उस धाम में एक दिन तो जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता। और उस दिन के लिए कभी भय नहीं करना, कभी डरना नहीं, कभी चिंता नहीं करनी। वह दिन अवश्य आएगा, परंतु उज्जवल मुख होकर के बड़ी शान और शौकत के साथ उस धाम में प्रवेश करेंगे, जिस प्रकार पूज्य श्री जिंदल जी ने अपने जीवन को जिया और अपने जीवन को सफल बनाया। समय का ध्यान रखते हुए अगला कार्यक्रम पूज्य पंडित जी। धन्यवाद। हम सभी स्वर्गीय श्री जगदीश राय जिंदल जी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बड़े दुखी हृदय के साथ इस शोक सभा में उपस्थित हुए। परम पिता परमात्मा से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इस पुण्य आत्मा को
अपने चरणों में स्थान देना, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। जैसे कबीर जी ने कहा है कि कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कि प्राणी का जब जन्म होता है, माँ के गर्भ से जब प्राणी बाहर आता है, तो प्राणी रोता हुआ आता है। और जब इस संसार से विदा हो जाता है, संसार से चला जाता है, हंसते हुए जाता है। उसी प्रकार से जो पुण्य आत्मा है, जो स्वर्गीय श्री जगदीश राय जिंदल जी, जिन्होंने बहुत से अच्छे पुण्य कर्म किए, शुभ कर्म किए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार, सभी का सहयोग करना, उनको याद करके श्रद्धांजलि स्वरूप अंतिम विदाई देने के लिए हम सभी इस शोक सभा में आए हैं। जैसे गीता जी ने लिखा है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतश्च एव च, कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित की गई है। जैसे गीता जी ने लिखा है कि नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न क्लेश दयन त्यागो न शोषयति मारुतः, कि इस आत्मा को छीन भी नहीं किया जा सकता। इसका ना कभी जन्म होता है, ना कभी इसकी मृत्यु होती है। ये जो कि जो इसको शस्त्रों के द्वारा भेदन काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा गलाया नहीं जा सकता, और हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। यह तो अजर है, अमर है। एक सामग्री की भांति प्राणी का शरीर भी अंत समय में स्वाहा हो जाता है। तो इस प्रकार से जिंदल परिवार में उनकी पत्नी विद्यावती जिंदल जी, 3 बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता की सेवा एक सरल पुत्र की भांति की। और जिस पुण्य आत्मा ने अपने इस जिंदल परिवार को एक जैसे माला के मोती होते उसी प्रकार बांधे रखा, अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हीं के मार्ग पर यह जिंदल परिवार चलता हुआ आगे बढ़े। पहले पुत्र श्री यशपाल जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी संतोष जिंदल जी। दूसरे पुत्र रमेश जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी रेणु जिंदल जी। तीसरे पुत्र राजेंद्र जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी गीता जिंदल जी। पुत्री हैं नीलम गुप्ता जी, उनके पति हितेश गुप्ता जी। दूसरी पुत्री पूनम सिंगल जी, उनके पति श्री संदीप सिंगल जी। पौत्री है रीतू गोयल, उनके पति सचिन गोयल जी। सरुचि सिंगल, उनके पति गौरव सिंह। रितिका मित्तल, उनके पति श्री अर्जुन मित्तल जी पौत्र हैं। संदीप जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी मनु जिंदल। अमन जिंदल जी, धर्मपत्नी सुमति जिंदल जी। तीसरे पौत्र साहिल जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी अंकिता जिंदल जी। पौत्री नेहा जिंदल, पौत्र स्नेहल जिंदल। तो इस प्रकार से बड़ा धार्मिक अच्छा परिवार है, जिन्होंने अपने पिता के निमित्त कई दिनों से उनकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ रखा,
तो गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय में जिस पुत्र ने पिता की मृत्यु होने के अंतर उनकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का श्रवण किया, वह पुण्य आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होगी। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गुरुवे भगवान की, श्री विष्णु भगवान